Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of database system and the second part of the lecture of normalization. In previous lecture, we discussed different concepts of normalization, concept related to the normalization. We discussed about the anomalies and the types of anomalies. And second one, we discussed different types of functional dependencies, in which we discuss about the full functional dependency, partial dependency, and then transitive dependency. If you listen and have the concept about these topics, you can easily manage the normalization and perform the normalization, and it's very easy to learn normalization. If you don't have concept about the anomalies and functional dependency, you don't know about the normalization. You can know by listening to the previous lecture carefully, and then you can learn normalization with this lecture. In this lecture, we go through previous concept which we study objectives of normalization. We study objective of normalization is to build the good description of data and its relationship. After normalization, we produce a faithful model of the enterprise, highly flexible, reduced redundancy, and is free of the update, insertion, and deletion anomalies. We study about the anomaly. Anomaly is an inconsistent and incomplete or contradictory state of the database. There are different types of anomalies: insertion, deletion, and update. We discuss different examples of anomalies. Normal form. Why we perform these normal form? For the removal of anomalies. Anomalies occur due to the redundancy, so we try to avoid redundancy, remove the redundancy from the tables or relations. मेरे बच्चे, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, then we move to the Bayes code normal form, BCNF, fourth normal form, and then fifth normal form, and then domain key normal form. और हमने ये कहा था कि हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है, इट्स कंपल्सरी दैट is already table is already in previous normal form. Meaning if we perform the second normal form, then it's compulsory that the relation is already in first normal form. तो हमारे पास ये हमने टाइप्स इसकी देखी थी, डिस्कस की थी, फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी थी. फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स. हम एक ही टेबल को देख रहे हैं, दो टेबल्स का रिलेशनशिप नहीं देखते. एक एट्रीब्यूट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने डिटेल के अंदर देखा था, डिस्कस की थी. तो ये हमने एग्जांपल देखी थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की. ट्रिवियल डिपेंडेंसी की हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास अगर जो उनका रिलेशन है, जो डिपेंडेंट है, तो जो हमारे पास जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर उसका सबसेट है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल डिपेंडेंसी. और कीज़ के बारे में हम 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि हमारी कीज़ को भी लास्ट टाइम हमने देखा था. व्हाट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? A relation is in first normal form if and only if every attribute is single valued for each tuple. Its mean, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था टेबल्स की करेक्टरिस्टिक, रिलेशन की करेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हर टपल के अंदर जो एक सेल होता है, ठीक है, जो एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट या एक जो सेल है उस एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है, कंटेन सिंगल एटॉमिक वैल्यू, यानी उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, उसके एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए.
अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो इस मीन कि उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करते हैं। जब रिपीटिंग ग्रुप्स को हम क्या कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हम मीन के जो हमारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हमने क्या करना होता है, अलहदा से लिख रहे होते हैं कि ईच सेल ऑफ द टेबल हैज़ ओनली वन वैल्यू इन इट। हर सेल के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ रोल नंबर 10 है, ठीक है, और आगे नेम आ रहे हैं तो दो नेम अगर आ रहे होंगे, ठीक है, नेम की जगह मेरे पास मैं कहता हूँ असद भी आ रहा है और साथ उमर भी आ रहा है, तो दो नेम हैं, तो एक सेल में दो नेम नहीं होने चाहिए, सिंगल नेम होना चाहिए। तो हम इनको रिमूव करेंगे। जब सिंगल की फॉर्म में लेके आएंगे तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा किसके अंदर है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, इट्स टू मच ईजी, कि हमारे लिए बहुत ईजी है इसको लर्न करना, सीखना। जस्ट नीड योर कंसंट्रेशन। आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोगों की विल चाहिए। अगर आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं सीखना चाहते, तो उनके लिए मैं अगर रात दिन एक भी कर लूँ तो वो कभी भी नहीं सीख सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लर्न करना चाहते हैं, चाहे उनकी मेंटल स्टेटस कुछ भी हो, ठीक है, वो इतने हमारे पास, मैं कहूँ कि मेरे मुताबिक, मेरी डिक्शनरी के मुताबिक कोई ज़हीन फतीन नहीं होता। जस्ट नीड योर कंसंट्रेशन एंड स्ट्रगल। आप लोगों की स्ट्रगल चाहिए होती है और कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो ये बात हमारे पास अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, नो सेट लिस्ट, रिपीटिंग फील्ड्स आर ग्रुप्स अलाउड इन द डोमेन। तो उस डोमेन के अंदर हमें कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं चाहिए, अलाउ नहीं है, ठीक है, हमने ये चीज़ें रिमूव करनी है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, अभी आप लोग को क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, लास्ट नेम है, मेजर है एंड क्रेडिट्स, और ये उसी तरह से जो हम पहले टेबल लेते आ रहे हैं। तो इसके अंदर मेजर में देखें कि हमारे पास ये रिपीटिंग यहाँ पे S1006 वाले स्टूडेंट आईडी में सामने देखें मेजर में दो वैल्यूज आ रही हैं कि उसका मेजर मैथ भी है और उसका CSE कंप्यूटर साइंस भी है। इसी तरह अगर ये एस स्टूडेंट आईडी 1010, ठीक है, बर्न्स जिसका नेम है, उसकी भी हमारे पास मेजर में दो आ रहे हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं, इंग्लिश एंड आर्ट्स। तो मेरे बच्चे हमने ये रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने हैं अपने टेबल्स के अंदर, हमारे कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो जब हमारे रिपीटिंग ग्रुप्स हम ख़त्म कर लेंगे तो हम ऐसे समझेंगे कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म कर लिए और हमारा जो टेबल है वो किसके अंदर होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। अब ये हमारे पास क्या है, न्यू स्टूडेंट, ये टेबल का नाम है न्यू स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर, क्रेडिट्स एंड स्टेटस, ये हम देख चुके हैं सोशल सिक्योरिटी में। अज्यूम स्टूडेंट्स कैन हैव मोर देन वन मेजर। अभी हमारे पास ये अजम्पशन है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक से ज़्यादा मेजर में क्या हो सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। द मेजर एट्रीब्यूट इज नॉट सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर टपल के लिए हमारी जो मेजर एट्रीब्यूट है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हमारी डेटाबेस ये कहती है कि आ सकती हैं, इससे मुराद ये है कि हम स्टोर कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आएंगी तो उसकी वजह से मेरे पास एरर्स आएंगे, अनॉमलीज आएंगी और डेटाबेस हमारी किस में चली जाएगी, कंट्राडिक्टरी स्टेट के अंदर चली जाएगी, इनकन्सिस्टेंट स्टेट के अंदर चली जाएगी। तो हमने इस चीज़ को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ पे देखें, अब इसकी एग्जांपल क्या है, हम इसको कैसे इंश्योरिंग वन एंड एफ, हमने कैसे इसको इंश्योर करना है, दो तरीके हैं इसके। एक तो मैं एक्स्ट्रा रो ऐड कर दूँ, ठीक है, क्या कर दूं, एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूं कि जहाँ ये मैथ और ये CSE आ रहा है, तो एक दफ़ा एक्स्ट्रा रो एक और ऐड कर दूं जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी लिखूं 1006, नेम की जगह लिखूं LEE ली, और इसके क्या कर दूं, एक दफ़ा मैथ लिख दूं और ऊपर मैथ लिखे रहने दूं, नीचे एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, उसके अंदर CSE लिख दूं, बाकी सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट कर दूं। इसी तरह ये इंग्लिश वाले में से भी एक दोबारा एक एक्स्ट्रा रो और ऐड कर दूं जिसके अंदर यही सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट कर दूं, S1010, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आर्ट, नेम उसका बर्न आ जाएगा और मेजर उसका आर्ट आ जाएगा और क्रेडिट 63 एंड देन स्टेटस इसका जूनियर और उसके हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे बच्चे, एक तो ये तरीका है कि मैं एक्स्ट्रा रो ऐड कर दूं, और ये अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो पीछे पढ़ चुके हैं
इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल कि हमारी जो रोज हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर मेरे बच्चे देखें मेजर चेंज है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जो एट्रीब्यूट क्या हो रहे हैं रिपीटिंग है उनको हम क्या उठाएं और एक्स्ट्रा टेबल बना दें। ठीक है, दो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक हमारे पास मैंने क्या बताया कि एक्स्ट्रा रो ऐड कर दें तो हमारा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर चलेगा। बेस्ट सोल्यूशन फॉर ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्रिएट अ न्यू टेबल, एक नया टेबल क्या करें क्रिएट करें, इन विच यू प्लेस द की ऑफ द ओरिजिनल टेबल एंड द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो ओरिजिनल टेबल की वहाँ पे रख दें और हमारे पास क्या कर दें एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हमारे पास होगा वो वहाँ पे ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे कीप द ओरिजिनल टेबल विद इट्स की, यहाँ पे आप देखें कि मेरे बच्चे हमने इसके अंदर क्या किया, इसमें से जो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था मेजर वाला वो रिपीटिंग ग्रुप थे, उसमें वो मल्टी वैल्यूड था, यानी उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमने उसको उठाया रहता एक टेबल बना दिया और इसका उसी टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास क्या था जो पहला टेबल है उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने क्या किया, उसकी प्राइमरी की जो हमारे पास टेबल है उसकी प्राइमरी की हमने क्या शो कर दी एज अ दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की के तौर पर हमने यूज़ कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वहाँ पे प्राइमरी की थी, तो हमने रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं ये भी अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या थी प्राइमरी की थी और यहाँ पे हमने क्या किया उसको उठा के ये जो मेरे पास आ रहा है आपको लोग नज़र आ रहा होगा ये स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एज अ फॉरेन की है और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आईडी थी एज अ प्राइमरी की थी। अब क्योंकि हमने इन दो टेबल्स को आपस से वहाँ से निकाला है तो इसलिए हमारे पास ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था मेरे पास ये वाला था मेजर। ठीक है, हमने इसको उठा के अलहदा से बना दिया और जो हमारे पास क्या था उसके टेबल का रिलेशनशिप बनाने के लिए ताकि कोई मसला ना हो हमने क्या ऐड कर दिया उसकी प्राइमरी की उठा के इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें रिपीटिंग ग्रुप्स मेरे क्या हो गए ख़त्म हो गए और इन दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप भी बन गया। अब जब रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो गए इट्स मीन कि ये हमारे पास जो टेबल है ये अब किस के अंदर है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया मेरे बच्चे, वी कैन से दैट कि टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेबल किसके अंदर है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेटाबेस है हमारे पास कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, कि आप लोगों ने गौर से इसको समझना है। अब यहाँ पे देखें अनदर मेथड फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हमने क्या किया जो एक दफ़ा इसको मैथ के साथ लिख लिया क्योंकि इसके अंदर रिपीटिंग आ रही थी, ये वाला कॉलम रो इसके साथ ऐड कर दी। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसी को उठाया S1006 को किसके साथ लिख लिया कंप्यूटर साइंस के साथ लिख लिया। अब ये दो रो यानी एक रो मेरे पास क्या हो गई एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ठीक है, अब इन रो को हमने क्या किया है ऐड किया, एक दफ़ा कंप्यूटर साइंस के साथ लिख दिया उसी को, बाकी डाटा सेम रहा, एक दफ़ा मैथ के साथ लिख दिया। तो ये भी एक मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आप लोग क्या कर दें अलग से टेबल बना दें, ये वाला बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्लैटन द ओरिजिनल टेबल बाय मेकिंग द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द की। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है जो जैसे ही आप लोगों का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको की का हिस्सा बनाना है, लेकिन इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको की का हिस्सा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा जब मैं ये S1006 सर्च करता हूँ तो मेरे पास एक रिकॉर्ड तो नहीं आएगा ना। अगर S1006 यानी स्टूडेंट आईडी में यूज़ करता हूँ, अब आप लोग मेरे बच्चे गौर से सोचा करें, ज़रा खुद सोचा करें तो आप लोग को क्लियर होंगी चीज़ें। मैं अगर इसी टेबल के ऊपर आपके सामने ये टेबल नज़र आ रहा है तो मैं S1006 ये की देता हूँ। ठीक है, तो कितने रिकॉर्ड आएंगे, एक आएगा या दो आएंगे? तो ये ऊपर वाला भी आएगा नीचे वाला भी आएगा। लेकिन फिर हमने प्राइमरी की डेफिनेशन तो खत्म हो गई। प्राइमरी की के अंदर हमने क्या पढ़ा था की दैट डिटरमाइन द हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड कि जो हमें क्या बताएगी सिंगल रिकॉर्ड बताएगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो हम फिर क्या करते हैं जो हमारी ये की है, ठीक है, ये जिसको हमने बनाया हुआ है तो जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसको की का क्या बना देते हैं हिस्सा बना देते हैं। अब जब हम सर्च करेंगे तो हम लिखेंगे S1006 और उसका मेजर लिखेंगे CSC, तो हमारा एक ही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आएंगे। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ठीक को क्या बनाना पड़ेगा हमें की का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इस सूरत में अगर हम अलहदा से एट्रीब्यूट बना रहे हैं फिर उनका अलहदा से टेबल बना रहे हैं तब हमें ये नहीं करना पड़ेगा, तब हम उसकी प्राइमरी की और फॉरेन की क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चलता जाएगा, हमारा काम चल जाएगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास ये थे येट अनदर मेथड इफ द नंबर ऑफ रिपीट्स इज लिमिटेड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिपीट्स जो है लिमिटेड है, ठीक है, क्या है हमारे पास लिमिटेड है, देन क्या करें, मेक द एडिशनल कॉलम फॉर द मल्टी वैल्यूड। जो हमारे मल्टी वैल्यूड हैं तो उसके एडिशनल कॉलम बना दो, मेजर 1 जैसे है मेजर 2, ठीक है, इस तरह का क्या बना दो, एडिशनल कॉलम बना दो। अब आप देखो, अभी मेरे पास क्या होगा, जब मैं सर्च करूंगा S1006 तो S1006 इसके अंदर एक ही है, लेकिन रिकॉर्ड मेरे पास ये पूरा कॉलम आएगा, ली सी उसका मेजर आएगा, मेजर 1 आ जाएगा CSC, मेजर 2 आ जाएगा मैथ, ठीक है, और ये इस तरह 15। लेकिन बेस्ट मेथड इज फर्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि हमें आगे नॉर्मलाइज करने की जरूरत। फर्स्ट वन क्यों कह रहा हूँ वो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जब मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करूंगा और थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करूंगा तो ये फिर दोबारा जब मैं इस तरह का एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ या रिपीट कर रहा हूँ कॉलम को, एक कॉलम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ या फिर एक्स्ट्रा रो ऐड कर रहा हूँ, दोनों के अंदर मेरे लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हम उसे क्या करते हैं, ठीक है, हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, टेबल्स को स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम पहले वाला तरीका क्या कर लें, यूज़ कर लें। और फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर हमने पढ़ा था फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए आर, ठीक है। जो मैंने इसके अंदर शार्ट आप मैं दोबारा बताता जाता हूँ, आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं कि हमारी अगर की दो एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास हमने पिछली सूरत में देखा कि ये अब दो एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और हमारे पास किसके, मेजर को मिला के हमने स्टूडेंट आईडी को और मेजर को, ये मेजर और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट आईडी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ठीक है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। ये अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमने इसको क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया है। प्राइमरी की क्यों बनाया है, हमारे पास अभी हमने देखा था कि हमारे पास प्राइमरी की अगर हम इसको मेजर को नहीं बनाते तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे थे, ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी की का हिस्सा बना दिया स्टूडेंट आईडी के साथ मेजर को। तो अब हमारे पास प्राइमरी की मेरी दो एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, दो एट्रीब्यूट से मिलकर मेरी क्या बनी है, प्राइमरी की बन रही है। अब अगर मेरी इस तरह की प्राइमरी की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही होगी तो हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, जैसे अभी देखें, मैं अगर स्टूडेंट आईडी देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट आईडी S1006 देता हूँ, तो मेरे पास क्या है, दो रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे आप देखता हूँ कि क्या, अगर मैं मेजर को भूल जाऊँ, यहाँ पे मेजर नहीं है मेरे पास, ठीक है, स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या बनाया, देता हूँ, ये जो कि की का हिस्सा है, स्टूडेंट आईडी एज अ पार्ट ऑफ की, ये और ये दोनों मेरे क्या है, की का हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी को। अगर मैं स्टूडेंट आईडी देता हूँ, क्या मेरा नाम एक ही आएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, यस, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट आईडी देता हूं तो उसका मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर भी एक ही आ सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। इट्स मीन कि जो लास्ट नेम है, ठीक है, और जो मेरे पास इस तरह का स्टेटस है और जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, की के किसी हिस्से पे, ये उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इट्स मीन कि ये की के किसी पार्ट के ऊपर, की के किसी हिस्से के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कोई भी एट्रीब्यूट हो एक टेबल के अंदर, वो की के किसी हिस्से के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, बल्कि किसी की के मुकम्मल की के ऊपर डिपेंडेंट हो, फुल फंक्शन डिपेंडेंट हो। यानी जब तक मैं दोनों ना दूं तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो। यानी अगर मुझे नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों वैल्यूज देनी पड़े, स्टूडेंट आईडी और मेजर, लेकिन इस सूरत में अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तब हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद होती है। किसी टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी अगर मेरी प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। अगर मेरी प्राइमरी की कितने एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी, एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी, तब मैं आप लोगों को ये यानी तब हमारा ये होगा कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं होगी। अगर एक टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है, अगर एक टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है, अब इट्स मीन कि वो किसके अंदर है, ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। यानी अगर एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होगी तो वो किसके अंदर होगा, ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये पार्शियल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट आप लोगों को मैं कल पढ़ा चुका हूँ। दोबारा हम क्या किसकी तरफ मूव करते हैं, सेकंड। तो हमारे पास अभी मैंने दोबारा भी बता दिया कि सपोज ये मेरे पास की है, कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड, लास्ट टाइम दोनों के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास अगर
ये पार्शियली कोर्स नंबर जो कि पार्शियल है यानी हिस्सा है किसका, प्राइमरी की का, फैकल्टी आईडी पता चल सकती है, इससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है। इट्स मीन कि फैकल्टी आईडी पार्शियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोर्स नंबर के ऊपर। तो हमारे पास इसके अंदर पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो हमने ये पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या करनी होती है, रिमूव करनी होती है। यानी की के किसी हिस्से के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि पूरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, अगर मेरी की क्या होती है, एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है, देन ऑटोमेटिकली सारे एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फुल फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं की के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होती ही ना, क्योंकि वो कितने एट्रीब्यूट पर मिल गए, एक एट्रीब्यूट होता। ठीक है, इसलिए हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने क्या रिमूव करनी होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म, a relation is in second normal form 2NF if it is in first normal form। अगर पहली बात तो ये है कि जो हम पहले पढ़ चुके वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एंड ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं यानी की के अलावा बाकी एट्रीब्यूट हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, मुकम्मल की के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, उसके किसी हिस्से के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो। नो नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन जस्ट पार्ट ऑफ द की के किसी हिस्से के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो। इफ की हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, ठीक है, अगर की के कितने एट्रीब्यूट हैं, एक एट्रीब्यूट है, आर इज इन वन एन एफ, और पहला हमारा जो टेबल है आर मीन रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, तो ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी होगा। आर इज ऑटोमेटिकली 2NF, तो हमारा जो टेबल है वो किसके अंदर होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी होगा, हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। अब कन्वर्टिंग टू 2NF, आइडेंटिफाई ईच पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, हम उसके अंदर क्या देखेंगे, फंक्शन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे। रिमूव द एट्रीब्यूट्स दैट डिपेंड ऑन ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स सो आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं जो की के किसी हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे या किसी और टेबल में ले जाएंगे। अभी एग्जांपल देखा बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। प्लीज दीज प्लेस दीज डिटर्मिनेंट्स इन द सेपरेट रिलेशन, इसको किसी और रिलेशन के अंदर ले जाएंगे अलोंग विद देयर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, उसके डिपेंडेंट एट्रीब्यूट के साथ। इन ओरिजिनल रिलेशन कीप द कंपोजिट की एंड, ठीक है, एनी एट्रीब्यूट्स दैट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ इट। तो हम उस अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर क्या रखेंगे, वो जो की हमारे पास होगी चाहे वो कंपोजिट की है या सिंगल की बचती है, ठीक है, हम उसको उस टेबल के अंदर रखेंगे और वो एट्रीब्यूट रखेंगे जो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, की के ऊपर। ठीक है, की के ऊपर पार्शियल डिपेंडेंट ना हो, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो, यानी जब तक हम दोनों की, अगर दो कंपोजिट की है यानी दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है, अगर दो एट्रीब्यूट दोनों ना दूं तो यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो। जैसा कि पीछे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं, यहां से आप लोगों को ये मेजर नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस मेजर की, ठीक है, तो S1001 का कौन सा मेजर है, जब तक मैं अगर साथ मेजर की वैल्यू नहीं दूंगा तो फुली फंक्शन है वो हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं होगा। यानी अगर सिर्फ S1001 दे दूं तो ये दो मेजर आ जाएंगे, साथ अगर मेजर की वैल्यू भी देता हूँ CSC, तब ये हमारे पास क्या आएगा, सिंगल रिकॉर्ड आएगा। तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फुली मेजर जो है किसके ऊपर, की फुली फंक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फुल फंक्शन डिपेंडेंट है, तो हमने यहाँ पे ये देखना है अपने टेबल के अंदर फुल फंक्शन डिपेंडेंट बनाना है, पार्शियल डिपेंडेंस। कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए की के ऊपर फुल फंक्शन डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीजें आप लोगों ने देखनी है, कन्वर्टिंग आइडेंटिफाई ईच पार्शियल एफडी हमने ये देखनी है। ठीक है, इवन इफ द कंपोजिट की हैज नो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कीप दैट रिलेशन टू कनेक्ट लॉजिकली द अदर। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों टेबल्स का आपस में क्या बनाना है, रिलेशन भी बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि सपोज ये मेरे पास एक टेबल था न्यू क्लास का, इसके अंदर हमारे पास ये दो एट्रीब्यूट से मिलकर क्या बनी हुई है, इसकी की बनी हुई है। क्यों दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट एक से ज्यादा क्या पढ़ रहा होता है, कोर्स पढ़ रहा होता है। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट आईडी दूंगा तो उसके कोर्स के लिहाज से कोर्स हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ठीक है, कि अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की वजह से जब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की होगी या तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए होंगे, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा रो ऐड की होगी। ठीक है, तो हमारे पास यूनिकली अगर स्टूडेंट आईडी के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा बल्कि साथ कोर्स नंबर भी देना पड़ेगा। तो हमने कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी को क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। अब मेरे बच्चे देखें कि इसके अलावा ये नॉन की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट लास्ट नेम, फैक आईडी, कैजुअल, रूम एंड ग्रेड। पहले हमने फंक्शन डिपेंडेंसी देखनी है, ग्रुप बाय डिटर्मिनेंट। कोर्स नंबर अगर देता हूं, ठीक है, तो कोर्स नंबर के हमारे पास क्या आ जाता है, कोर्स नंबर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है, फैक आईडी, फैकल्टी आईडी भी पता चल जाएगी, स्केड्यूल एंड रूम।
ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोर्स नंबर के ऊपर। इसी तरह स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्या चीज़ डिपेंडेंट है, स्टूडेंट लास्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट आईडी एंड लास्ट नेम। कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी दोनों को मिला के अगर हम बात करते हैं तो कौन से ये यूनिकली, सारे एट्रीब्यूट मेरे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कोर्स नंबर, स्टूडेंट आईडी, फैक आईडी, स्केड्यूल, रूम, लास्ट नेम, ये हमारे पास क्या है, यानी ये फुल फंक्शन डिपेंडेंट है सारे, किसके ऊपर हो जाते हैं, कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी के ऊपर, ठीक है, फुल सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाते हैं, फुल फंक्शन ही नहीं है। अब हमने इनको देखना है, क्रिएट द टेबल ग्रुप बाय द डिटर्मिनेंट्स। ये कोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है, हमने क्योंकि ये जो मेरे पास है ये पार्शियल डिपेंडेंट है, ये कोर्स नंबर क्या है, विच इज द पार्ट ऑफ की, और ये जो मेरे एट्रीब्यूट हैं ये कोर्स नंबर हो गया, फैक आईडी हो गया, स्केड्यूल हो गया, रूम हो गया, ये फंक्शन डिपेंडेंट है कोर्स नंबर के ऊपर। इट्स मीन कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोर्स नंबर के ऊपर। इसी तरह स्टूडेंट आईडी विच इज द पार्ट ऑफ की एंड स्टूडेंट आईडी एंड लास्ट नेम, ये दो एट्रीब्यूट मेरे पास ऐसे हैं जो किसके ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट, यानी इनको स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं स्टूडेंट आईडी दूं तो स्टूडेंट आईडी मेरे पास वापस रिजल्ट के तौर पर एक ही आएगी और लास्ट नेम भी क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इन पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा टेबल बना लेना है, क्रिएट टेबल्स ग्रुप बाय द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास देखें कोर्स नंबर था, ये कोर्स का टेबल हमने बना दिया अलग से, टेबल का नाम रख दिया कोर्स, उसके अंदर हमने कोर्स नंबर, फैक आईडी, स्केड्यूल एंड रूम, जो उसको क्या कर रहे थे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, हमने उनका अलग टेबल बना दिया। इसी तरह हमने स्टूडेंट का एक टेबल बना दिया, और स्टूडेंट आईडी एंड लास्ट नेम उसके अंदर ऐड कर दिया, दो अलग अलग टेबल हो गए। अब आप देखें कि जब मैंने पहले शुरू में बताया था कि व्हेन टेबल कंटेन, ठीक है, सिंगल वैल्यूड प्राइमरी की, अगर हमारे पास क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की अगर एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होगी तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि उसके सारे एट्रीब्यूट फुल फंक्शन डिपेंडेंट होंगे की के ऊपर, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होंगे। पार्शियल तो उस वक्त होंगे जब की का कोई हिस्सा होगा, इस सूरत में तो की का कोई हिस्सा ही नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये किसके अंदर चला गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कीप द रिलेशन विद ओरिजिनल कंपोजिट की विद एट्रीब्यूट फंक्शन आईडी ऑन इट्स, ठीक है। हमने क्या किया, कोई एक एट्रीब्यूट जो ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे देखें न्यू स्टूडेंट टू कीप द रिलेशन विद ओरिजिनल कंपोजिट की, ओरिजिनल कंपोजिट की के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन रखना है विद एट्रीब्यूट, उन एट्रीब्यूट्स के साथ एफ डी ऑन इट, ठीक है, जो कि हमारे पास फुल फंक्शन डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, एंड इट इफ एनी न्यू, जैसे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रेड है, ठीक है, ये ग्रेड, कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी क्या है, फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी के ऊपर, ग्रेड। तो इसलिए हमारे पास हम इस एक नया टेबल भी रखेंगे, और जो हमारे पास क्या होगा, पुराना टेबल जो हमने एक्स्ट्रा टेबल बनाए हैं वो भी हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा टेबल बनाने से क्या होगा, हमारा जो की एट्रीब्यूट है कंपोजिट की खत्म हो जाएगी, एक सिंगल की आ जाएगी, और इस सिंगल की बेस पर हम ये कहेंगे कि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। जब पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो गई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इस पार्शियल डिपेंडेंसी के रिमूव होने की वजह से अब हमारे टेबल किसके अंदर आ चुके हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो वो ऑलरेडी किसके अंदर होंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चलेंगे तो यानी वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से फिर किसकी तरफ गए, हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देखें 2NF की एग्जांपल देख लेते हैं एक टेबल से कि ये हमारे पास टेबल है, कोर्स नंबर, स्टूडेंट आईडी, और हमारे पास क्या है, कोर्स नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, और लास्ट नेम, फैक आईडी, स्केड्यूल, रूम, ग्रेड, ये हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप के आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब इस रिपीटिंग ग्रुप ना होने की वजह से हमारे पास क्या है, ये किसके अंदर है, ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो जब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, इट्स मीन कि हम ये देखना है कि इसके अंदर कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होती तो हमने उस पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म करना है, हम देख चुके हैं क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। अब हमने इस पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या करना है, खत्म करना है। अब इस पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी इन द टेबल, बाय क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा टेबल, ठीक है। एक्स्ट्रा टेबल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो और उनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट शामिल करेंगे, ग्रुपिंग द एट्रीब्यूट विच, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द की, जो की के किसी हिस्से पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये हमारे पास कोर्स नंबर और स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है इसके अंदर। और इसके अंदर जब हमने प्राइमरी की बात की,
मिलके तो ये हमारे पास फैक आईडी कैजुअल एंड रूम ये किसके ऊपर पार्शियल डिपेंडेंट थे, कोर्स नंबर के ऊपर। तो हमने क्या बनाया, अलहदा से एक टेबल बना दिया कि ये स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट लास्ट नेम, क्योंकि ये डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। और एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया कोर्स नंबर जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी एंड ग्रेड, ठीक है, उसके शामिल किया। एक एक्स्ट्रा टेबल हमने बनाया कि जो दोनों के ऊपर ग्रेड क्योंकि डिपेंड कर रहा था कोर्स नंबर के ऊपर भी और स्टूडेंट के ऊपर भी। तो हम क्योंकि हमने ये देखना है कौन से स्टूडेंट का कौन से कोर्स के अंदर क्या ग्रेड है, तो ग्रेड इज फुल फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कोर्स नंबर एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो हमने इसका भी टेबल क्या करना है, बनाना है। तो हमने इसका एक टेबल बनाया। अब इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट आईडी जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट का टेबल बना दिया, इसी तरह क्लास 2 का एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया, उसके अंदर कोर्स नंबर और उसके जो पार्शियल डिपेंडेंट थे फैक्ट आईडी कैजुअल एंड रूम ये हमने बना दिए। रिमेंबर दैट, ठीक है, आप लोगों ने किसी भी टेबल के अंदर डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं ऐड करने, जस्ट, ठीक है, इनका आपस में रिलेशनशिप कायम करने के लिए जब इन दोनों को टेबल्स को आपस में रिलेट करेंगे तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या करेंगे, फॉरेन की के तौर पर यूज करेंगे ताकि उनका रिलेशनशिप बन जाए। इफ यू नीड, अगर आप लोग उसके रिलेशनशिप की जरूरत है, ठीक है, अगर हमें उसके रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है तो हम किसी भी एट्रीब्यूट को वहां पे डुप्लीकेट या रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास रजिस्टर का और क्लास का यहाँ यानी हमारे पास किसकी जरूरत है, हमें रिलेशनशिप की जरूरत है, तो यहाँ पे कोर्स नंबर एज प्राइमरी की और यहाँ पे कोर्स नंबर एज फॉरेन की के तौर पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। अभी हमने क्या किए, एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट कर दिए। तो हम अब किसके अंदर ले गए हैं, अपने पहले वाले टेबल को जो कि हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर था। अब हमने जब ये एक्शन परफॉर्म किए तो इसका मीन कि अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, ठीक है, जब हमारे पास कन्वर्ट कर चुकेंगे, अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या चीजें देखेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के मुतालिक कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि इफ बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन बी देन ट्रांजिटिवली सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो हमने अगर ये डिपेंडेंसी होगी तो हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है और खत्म करना है इन चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने किसके अंदर देखनी है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर देखनी है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब हमारे पास एक टेबल को लेके जाएंगे तो लेकिन पहले उसकी कंडीशन क्या है, वो किसके अंदर होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इट्स मीन कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा। जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। देन अगेन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कि हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, तो ये हमने देखनी है। इफ ए बी एंड सी, मैं अभी आप लोगों को जैसे पहले बता चुका हूं कि सपोज ये हमारे पास अब टेबल है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट का टेबल है। इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर, क्रेडिट्स एंड स्टेटस, ये मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमने इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखनी है। जो हमारे पास क्रेडिट जो स्टेटस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रेडिट्स के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारे पास क्रेडिट्स का नहीं पता चलेगा तो हम नहीं स्टेटस नहीं बता सकते कि हमारे पास क्या है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट स्टेटस है, ठीक है, ये जूनियर है, सीनियर है, किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रेडिट्स के ऊपर। तो जब तक हमारे पास क्या होंगे, क्रेडिट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास हम किसकी नहीं डिटरमिन कर सकते हैं, स्टेटस को। तो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, किसका, स्टेटस का। तो हमने यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्टेटस है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, फंक्शन डिपेंडेंट है। बाय ट्रांजिटिवली अब आपने देखना है क्रेडिट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्रेडिट हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट आईडी हमारे पास होगी तब हमारे पास हम उसके क्रेडिट में देख सकते हैं कि उसने कितने क्रेडिट पढ़े हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्रेडिट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्रेडिट स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रेडिट्स के ऊपर। तो इंप्लाइज क्या है, हमारे पास स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो ये मेरे पास किस चीज का कंसेप्ट है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। तो अगर हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अंदर हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नान की एट्रीब्यूट के ऊपर क्या कर रहा हो, अगर डिपेंड कर रहा होगा तो इट्स मीन कि उसके अंदर क्या होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। और हमने इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब हम इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारे पास
हम जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म उससे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चला गया है। तो अब हमारे पास मेरे बच्चे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, रिलेशन हमारे पास किसके अंदर होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा, 3NF के अंदर होगा। इफ whenever a non trivial functional dependency, कि उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, फंक्शनल ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी x हमारे a डिपेंड ऑन x एग्जिस्ट, देन इधर x इज अ सुपर की, ठीक है, और a इज अ मेंबर ऑफ सम कैंडिडेट की। ठीक है, हमारे पास या तो x क्या होगा, हमारी सुपर की होगी, या a जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, हमारे पास मेंबर ऑफ सम कैंडिडेट, कैंडिडेट की का क्या होगा, मेंबर होगा। ये हम कैंडिडेट की भी हम देख चुके हुए हैं। टू बी थर्ड 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन मस्ट बी इन 2NF एंड हैव नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि हमारा किसके अंदर होना चाहिए, रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो और उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिनेंट्स एंड अदर नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, नो नॉन की एट्रीब्यूट मीन के हमारे पास मैंने आप लोगों को कहा था कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड ना हो। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, नॉन की एट्रीब्यूट, नो नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिनेंट्स एंड अदर नॉन की एट्रीब्यूट, हियर की इंक्लूड्स कैंडिडेट की, कि हमारे पास इसके अंदर मतलब क्या है, अगर की उसके अंदर मौजूद है तो क्या होगी, वो कैंडिडेट की होगी। अब मेकिंग अ रिलेशन इन 3NF, जैसे अब यहाँ पे देख लें इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे कैसे है हमारे पास। फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट, एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर, क्रेडिट्स एंड स्टेटस। अब हमने देखना है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। मेरे बच्चे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर की सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, जैसा कि यहाँ पे अभी आप लोगों को नजर आ रही है, इट्स मीन कि ये ऑलरेडी किसके अंदर है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अगर हमारे पास की कंपोजिट होगी यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी, तब हम कहेंगे कि उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, उसकी पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विद FD फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा क्या है, स्टेटस डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, क्रेडिट्स के ऊपर, यानी क्रेडिट डिटरमाइन द स्टेटस, क्रेडिट स्टेटस को डिटरमाइन कर रहा है, यानी हमारे क्रेडिट्स पता होंगे तो स्टेटस का पता चलेगा, अदरवाइज स्टेटस का पता नहीं चल सकता जब तक हमारे पास क्रेडिट्स नहीं है। ठीक है, हम क्रेडिट्स की बेस पर उसका स्टेटस से मुराद क्या है, हमने ये देख रहे हैं सीनियर है, जूनियर है, ठीक है, तो कौन सा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्रेडिट से पता चलेगा कि कितने क्रेडिट आवर्स क्रेडिट्स पढ़ चुका है वो। अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, और ये हमारे पास क्रेडिट नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि की नहीं है। क्रेडिट मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि इट इज नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है, और स्टेटस इज आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट। तो नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन के ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है तो हमने क्या करना है, वी मस्ट रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, टू इंश्योर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, रिमूव द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, यानी जैसे हमारे पास डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है स्टेटस, जिसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द रिलेशन, रिलेशन से रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करना है, क्रिएट अ न्यू टेबल विद द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, जो उसका डिटरमिनेंट्स है और उसका जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है उसको क्या कर देंगे, अलग टेबल के अंदर लिख देंगे। जैसे कीप द डिटरमिनेंट इन ओरिजिनल टेबल, जैसे यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, लास्ट नेम है और इसका क्या है, मेजर और क्रेडिट्स, ये एक टेबल हमने अलग से बना दिया। और क्रेडिट्स जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट था किसका, स्टेटस का, और स्टेटस को उठा के हमने एक्स्ट्रा टेबल बना दिया। ये भी याद रखना है, कीप द डिटरमिनेंट, और जो डिटरमिनेंट था यानी हमारे पास कौन डिटरमिनेंट था, क्रेडिट डिटरमिनेंट था किसका, स्टेटस का, तो डिटरमिनेंट्स को उसके ओरिजिनल टेबल के अंदर लाजमी रखना है। ठीक है, ताकि उनका रिलेशन कायम रहे। स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, मेजर एंड क्रेडिट्स, देन क्रेडिट्स एंड स्टेटस। ठीक है, क्रेडिट्स की बेस पर हमारे पास क्या है, ये अब इनका क्या बन जाएगा, और क्रेडिट इसके अंदर हमने क्या बना देना है, प्राइमरी की बना देनी है। ठीक है, तो ये हम जब ये याद रखेंगे, ये कंप्यूटर के ऊपर नहीं हो रहा, ये हमने पेपर वर्क कर रहे हैं। पेपर वर्क पे जब हम अपनी टेबल डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर लेंगे, जो हमारे पास टेबल आएंगे और उनके ऊपर रिलेशनशिप आएंगे, तब हम उनको उसका लॉजिकल डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, मीन के उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी DBMS के ऊपर। अब एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो सेम एग्जांपल जो भी हम देख चुके हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसके अंदर मौजूद थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अलग से उठा के ये चीज़ें डाल दी, और क्रेडिट वाला क्रेडिट्स एंड स्टेटस उसका क्या कर दिया, हमने वहाँ पे देख लिया। ठीक है, फ्रेशमैन है, जूनियर है, सीनियर है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रेडिट्स के ऊपर। तो ये हमें, अब ये मेरा टेबल किसके अंदर चला गया मेरे बच्चे,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चला गया। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि हमारा जो टेबल है, ठीक है, वो किसके अंदर होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमारे पास हम एक डेटाबेस बना रहे होते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक अगर हम कर लेते हैं तो इसमें कि हमारी डेटाबेस किसके अंदर आती है, एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम क्या इसके अंदर चले जाते हैं, मज़ीद भी इसको करेंगे तो वो मज़ीद क्या हो जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी और मज़ीद स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली जो भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वो किसको कहाँ तक लेके जाते हैं, उसको डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर का कंसेप्ट पार्शियल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कंसेप्ट होगा तो आप लोग रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, ए रिलेशन इज इन बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF इफ whenever ए नॉन ट्रिवियल, पीछे हम ट्रिवियल डिपेंडेंसी पढ़ चुके हैं, ए नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी जैसे कि हमारे पास क्या है, ए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, एग्जिस्ट, ठीक है, देन एक्स इज अ सुपर की, तो हमारे पास क्या बनाएंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन इज बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, कि उसके उस सूरत में होगा कि अगर ए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, देन क्या होगा कि एक्स इज अ सुपर की, एक्स क्या होगा हमारे पास, सुपर की होगी। ठीक है, सुपर की का कंसेप्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। स्टीकर देन 3NF विच अलाउ ए टू बी पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, जो हमें ये बताता है कि यानी इसके अंदर हम इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, नॉन की एट्रीब्यूट होंगे, सारे कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट की होंगी। ठीक है, हमारे पास जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट होंगे वो कैंडिडेट की होंगी, मीन के उनको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। इफ देयर इज जस्ट वन सिंगल कैंडिडेट की द फॉर्म आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इफ देयर इज जस्ट वन सिंगल कैंडिडेट की, अगर वहाँ उसके अंदर सिर्फ सिंगल कैंडिडेट की होगी, द फॉर्म आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सारे क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंट के अंदर होंगी, मीन के हमारा किसके अंदर होगा, वो बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये न्यू फैकल्टी का हमारा टेबल है जिसके अंदर फैकल्टी नेम और डिपार्टमेंट को मिलाकर हमने क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। ऑफिस रैंक, ठीक है, डेट हायर्ड, जो उसको क्या किया गया, कब हायर किया गया। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें, डिपार्टमेंट, ठीक है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑफिस के ऊपर। ठीक है, ऑफिस डिटरमिन द डिपार्टमेंट। इसी तरह फैकल्टी नेम एंड डिपार्टमेंट दोनों मिलकर किसको डिपेंड कर रहे हैं, फैकल्टी नेम के और डिपार्टमेंट दोनों मिलकर किसको डिटरमिन कर रहे हैं, ऑफिस को। ठीक है, क्योंकि ऑफिस किसके हमारे पास डिटरमिन कर रहा है, डिपार्टमेंट को। अब हमारे पास यानी अगर मुझे फैकल्टी नेम, अब देखें मैं कहता हूँ कि कोई एक पर्सन का नाम देता हूँ, जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, अभी हमारा कैंपस तो छोटा सा है, मेन कैंपस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो मेन कैंपस की मेन की मुझे BGU मुल्तान की अगर मैं बात करता हूँ, मैं वहाँ पे एक टीचर का नाम लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे, मैं कहता हूँ उनके ऑफिस में चले जाएं, तब आप क्या कहेंगे, ठीक है, मैं कहता हूँ जब तक मैं डिपार्टमेंट का नेम नहीं लूँगा उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन से ऑफिस। मैं कहता हूँ चेयरमैन के ऑफिस में चले जाएं, आप कौन से डिपार्टमेंट का चेयरमैन, जब तक डिपार्टमेंट का नाम नहीं आएगा उस वक्त तक चेयरमैन का और डिपार्टमेंट में नहीं पता चलेगा। तो इसलिए फैकल्टी नेम और उसका जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो डिटरमिन करेंगे ऑफिस को और उसके रैंक को कि उसका कौन सा रैंक है, डेट हायर्ड और उसकी हायर डेट कौन सी है, क्योंकि सेम नेम से क्या हो सकते हैं, फैकल्टी हो सकती है दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसी तरह फैकल्टी नेम और ऑफिस मिलकर, फैकल्टी नेम और ऑफिस मिलकर किसको डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फैकल्टी का नेम और ऑफिस मिलकर डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो हमारे पास फैकल्टी का नेम क्या है और उसका ऑफिस कौन सा है, ठीक है, ये मिलकर डिपार्टमेंट को कि कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका रैंक कौन सा है और डेट हायर्ड कौन सी है। ठीक है, ये हमें बता रहे हैं, ये इसकी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। अब न्यू फैक, जब हम न्यू फैकल्टी टेबल की बात करते हैं, इज नॉट BCNF बिकॉज ऑफिस इज नॉट अ सुपर की। हमने कहा कि सारे क्या होने चाहिए, जितने भी जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो सुपर की हों। ठीक है, हमारा ऑफिस अकेला जो डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट को, वो हमारी क्या है, सुपर की नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी से मिलकर सुपर की बन रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, न्यू फैक इज नॉट BCNF बिकॉज ऑफिस इज नॉट अ सुपर की, हमारे पास सुपर की नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑफिस दूँ एक से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, तो इसलिए टू मेक इट BCNF रिमूव द डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स
टू अ न्यू रिलेशन, एक नए रिलेशन के अंदर ले जाएं विद द डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट कौन सा है, ऑफिस और डिपार्टमेंट को मिला के एक नया टेबल बना दें। ठीक है, फैकल्टी ऑफिस एंड डिपार्टमेंट, इस तरह फैक्ट टू हमारे फैकल्टी नेम ऑफिस रैंक और डेट हायर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, अब किसके अंदर चला गया, BCNF के अंदर चला गया। नोट वी हैव लॉस्ट अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन, ठीक है, फैकल्टी टू नो लॉन्गर एबल टू सी दैट, जो हमारे पास क्या है, ये जो टेबल है फैक्ट नेम और डिपार्टमेंट इज अ डिटर्मिनेंट सिंस दे आर इन डिफरेंट रिलेशन, तो इसलिए हमारे पास किसके अंदर है, ये डिफरेंट रिलेशन के अंदर है। तो हमारे पास जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी इन फैकल्टी 2 के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये किसके अंदर चला गया, BCNF के अंदर चला गया। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ मेरे बच्चे, हमने बार बार ये चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इनफ होता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो आप लोग के एग्ज़ाम का हिस्सा भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि फैकल्टी नेम हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफिस 101। ठीक है, अब हमारे पास प्रोफेसर उसका रैंक है 1975। तो हमने क्या कर दिया, एक अलग से टेबल बना दिया, मैं वहाँ समझा चुका हूँ, फैक्ट 1 के नाम का और उसके अंदर ऑफिस और डिपार्टमेंट को शामिल कर दिया, फैक्ट 2 का और उस बाकी ये चीज़ें। अब इनके अंदर हमारे पास ये पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। हमारे इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है, कोई नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर था, थर्ड में था तो हम BCNF की तरफ गए बाय स्कोर नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ जब जाएंगे तो वो पहले BCNF के अंदर होगा, तो हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास हम उसको BCNF के अंदर या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नॉर्मलाइजेशन एग्जांपल, रिलेशन दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट इन लार्ज बिजनेस, जो हमारे पास क्या है, एक बड़े बिजनेस के अंदर जो हमारे ये टेबल है वर्क, तो हमारा एक टेबल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट मेजर, एम्प्लॉय आईडी, ओवर्स, एम्प्लॉय नेम, बजट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तकरीबन हमारे पास 1 2 3 11 एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, जो हमारे पास एक टेबल है। अब हमने इसके अंदर यहाँ पे देखना है नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल, यानी इसी को हमने नॉर्मलाइज करना है। हमने एक टेबल तो बना दिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक टेबल है, उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनको हमने अब क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो डेटाबेस के अंदर ऐसा टेबल बना देंगे, लॉजिकली डिज़ाइन कर देंगे उसको, तो जब हम सर्चिंग करने लगेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, नया डाटा इंसर्ट करने लगेंगे, तो अनॉमलीज आएंगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन अनॉमलीज। ईच प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक नेम, हर प्रोजेक्ट का क्या होता है, यूनिक नेम होता है कहीं ना कहीं। आल्थो यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट नेम की, तो हर प्रोजेक्ट का क्या होगा, कोई ना कोई यूनिक नेम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। आल्थो प्रोजेक्ट नेम्स आर यूनिक, क्योंकि प्रोजेक्ट नेम क्या है, यूनिक है। नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर आर नॉट, हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, जब हम ये यूनिक नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम यूनिक है, लेकिन ये एम्प्लॉयज का नेम ये वाला और जो इसका मैनेजर है, ठीक है, वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारे पास होगा, ये दोनों यूनिक नहीं है, क्योंकि सेम नाम हो सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के दो के नाम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए many employees can be assigned to work on the each project and an employees can be assigned to more than one project, एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। एक प्रोजेक्ट को काफ़ी सारे एम्प्लॉय असाइन हो सकते हैं, मीन के एक प्रोजेक्ट काफ़ी सारे लोग मिलकर कर रहे होंगे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक बंदा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। ठीक है, ये भी देखते जाना है। ये मल्टी वैल्यूड हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। द एट्रीब्यूट्स ओवर टेल द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ठीक है, पार्टिकुलर एम्प्लॉय इज असाइन टू वर्क ऑन अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, द एट्रीब्यूट होवर जो हमारे पास इसके अंदर होवर्स हैं, हमें ये बताता है कि एक घंटे एक हफ्ते के अंदर उसने कितना काम किया, क्योंकि हर एम्प्लॉय को क्या किया गया, एक वर्क असाइन किया गया उस प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह बजट, स्टोर द अमाउंट बजट फॉर द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डेट गिव्स द स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। सैलरी गिव्स द एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी यहाँ पे अब एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी हम देख चुके हुए हैं। इसी तरह एम्प्लॉय MGR गिव्स द नेम ऑफ एम्प्लॉयज मैनेजर हुज माइट नॉट बी द सेम एज द प्रोजेक्ट मैनेजर। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजर जो होगा, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ को जो मैनेज कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर और वो दोनों क्या हों, सेम हों। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉय DEPT गिव्स द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम्स आर
यूनिक डिपार्टमेंट नेम क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। द एम्प्लॉयज मैनेजर इज मैनेजर ऑफ द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, यानी हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा जो एम्प्लॉय मैनेजर है। रेटिंग क्या है, गिव्स द एम्प्लॉय रेटिंग फॉर द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए उसको रेटिंग मिलेगी। द प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन द रेटिंग, उसको रेटिंग असाइन करेगा कि ये किस क्या रेट करता है, ये 5 है, 5 आउट ऑफ 5 है, 3 है, 4 है, ये उसकी रेटिंग होगी। एंड ऑफ एम्प्लॉय वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखें नॉर्मलाइजेशन एग्जांपल, फंक्शनल डिपेंडेंसी इनकी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि ये प्रोजेक्ट मेजर और बजट और स्टार्ट डेट ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम है। ये आप लोगों ने अब खुद करनी है मेरे बच्चे, आप लोग क्योंकि देख चुके हैं, मैं आप लोगों को सारी डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। कि यानी अगर मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ तो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन सा है वो एक ही यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट का बजट कितनी है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह उसकी स्टार्ट डेट भी क्या हो जाएगी, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, यानी एक ही स्टार्ट डेट आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट नेम के ऊपर, यानी प्रोजेक्ट नेम डिटरमाइंस द प्रोजेक्ट मेजर बजट एंड स्टार्ट डेट। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास डिटरमाइन कर रहा है किसको, अगर एम्प्लॉय आईडी देता हूँ एम्प्लॉय नेम एक ही आएगा, सैलरी भी उसकी एक ही आएगी, ठीक है। एम्प्लॉय मेजर भी उसका क्या आएगा, एक आएगा, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी क्या आएगा, एक आएगा। ये उसकी यानी ये जो मेरे पास एट्रीब्यूट है ये किसी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट है। इस तरह प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी को मिला के देखता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम कौन से प्रोजेक्ट के अंदर और कौन से एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, ये हमें होवर्स डिटरमाइन करेंगे, और रेटिंग, यानी रेटिंग और होवर्स इन दोनों के ऊपर क्या है, फुल फंक्शन डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों नहीं देंगे तो तब हमारे पास, यानी अगर सिर्फ प्रोजेक्ट नेम देता हूँ तो मुझे होवर्स नहीं पता चलेंगे, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के होवर्स, इसी तरह रेटिंग भी नहीं पता चलेगी। तो इस तरह एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, EMP एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये जो किसको डिटरमाइन कर रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर को, कि हमारे पास उस एम्प्लॉय के मैनेजर कौन है, यानी हर डिपार्टमेंट का जैसे चेयरमैन होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये उसको डिटरमाइन कर रहा है। एम्प्लॉय मैनेजर डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन, जो एम्प्लॉय मैनेजर है MGR, ठीक है, डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को डिटरमाइन नहीं करता, सिंस पीपल्स नेम वर नॉट यूनिक, क्योंकि पीपल के नेम यूनिक नहीं होते। डिफरेंट मैनेजर्स मे हैव सेम नेम, ठीक है, और एंड मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द मैनेजर मे मैनेज मोर देन वन डिपार्टमेंट, हो सकता है कि एक मैनेजर जो है ना एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को क्या कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर डज नॉट डिटरमाइन द प्रोजेक्ट नेम, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारे पास है, ठीक है, वो किसको डिटरमाइन नहीं करता, प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन नहीं करता, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को क्या कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो। तो अब हमने इसके अंदर प्राइमरी की ढूंढनी है। प्राइमरी की का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे देखें दो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। एक प्राइमरी की हम कैसे ढूंढेंगे, जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट नेम की, तो प्रोजेक्ट नेम हमारे पास किसको डिटरमाइन कर रहा है, इन एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है। ये एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं प्रोजेक्ट नेम से, ठीक है। तब हम यहाँ पे बाकी यानी एम्प्लॉय आईडी से ये वाले एट्रीब्यूट क्या हो रहे हैं, डिटरमाइन हो रहे हैं। तकरीबन हमारे पास कितने हैं, ये चार एट्रीब्यूट, ये 8 एट्रीब्यूट इसे डिटरमाइन हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर भी प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी शामिल है डिटरमाइन करने में, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम एम्प्लॉय मैनेजर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय मैनेजर किससे, यहाँ पे देखें एम्प्लॉय मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी से डिटरमाइन हो रहा है। तो इट्स मीन कि हम एम्प्लॉय आई प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी को, सिंस एवरी मेंबर डिपेंड ऑन द दैट कम्बिनेशन, हर नंबर जो है ना इस कम्बिनेशन दोनों को मिला दें तब हर सारे इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। फर्स्ट नंबर फॉर्म विद द प्राइमरी की ईच सेल इज सिंगल वैल्यूड वर्क इन द फर्स्ट नंबर फॉर्म, ठीक है। सेकंड नंबर फॉर्म के अंदर जब हम जाएंगे पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है, क्योंकि प्राइमरी की जो हमारे पास किसके ऊपर है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए हम उसके अंदर देखेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। क्यों पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है, कि प्रोजेक्ट ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्रोजेक्ट नेम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये की का हिस्सा है, ये भी अब की का हिस्सा है, मुकम्मल की नहीं है। इसलिए पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए एक अलहदा टेबल बना देंगे, और ये क्या बना देंगे, अलहदा टेबल बना देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अलहदा से टेबल में बना देंगे। तो प्रोजेक्ट का एक अलहदा टेबल बना दिया, प्रोजेक्ट नेम, और ये वाले एट्रीब्यूट लिख दिए 4 जो थे। इस तरह एम्प्लॉय का एक टेबल बना दिया, एम्प्लॉय आईडी, और वो ये एट्रीब्यूट लिख दिए जो उसके साथ डिटरमाइंड थे। और जो हमारे एक्स्ट्रा बच रहे थे वर्क एंड, उसके अंदर प्रोजेक्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी दोनों को मिला के, इसी तरह होवर्स और रेटिंग
एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया। ये अब किसके अंदर चला गया मेरे पास बच्चे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चला गया, क्योंकि अब पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अब हम जब यहाँ पे उसी तरह सेम आप लोग देख चुके हैं। अब जब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन एग्जांपल थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, प्रोजेक्ट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म नो नॉन की एट्रीब्यूट फंक्शन डिटरमिनेंट एंड अदर, वही पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट वर्क इन 3NF नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन्वॉल्विंग होवर्स और रेटिंग एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एम्प्लॉय वाला जो टेबल है वो अब जरूरी नहीं है कि देखें ये अब 3 टेबल बन गए हैं, अब तीनों को अलग-अलग चेक करना है, सबको एक साथ ही चेक करना कि इसको देखेंगे प्रोजेक्ट वाले टेबल को कि ये मेरे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, इसके अंदर कोई नॉन की एट्रीब्यूट को डिपेंड करता है नहीं। अगर मैं बजट दे दूं स्टार्ट डेट पता चल जाएगी नहीं, अगर स्टार्ट डेट दे देता हूँ बजट पता चल जाएगी नहीं, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। इसी तरह बजट पता, अगर मैं बजट प्रोजेक्ट देखता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम देता हूँ, बजट पता चलेगा नहीं, क्यों, वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, इसलिए उसके बजट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा बजट आ जाएंगे। इस तरह से मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का नेम देता हूँ स्टार्ट डेट का नहीं पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हो और उनकी दोनों की स्टार्ट डेट डिफरेंट हो, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट नेम देता हूँ तो ये प्रोजेक्ट नेम जो है मेरे पास ऑलरेडी क्या है, की है, ठीक है। तो इट्स मीन कि नॉन की एट्रीब्यूट कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट वाला टेबल ऑटोमेटिकली ऑलरेडी किसके अंदर है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम इसको देखेंगे वर्क वाले को, इसके अंदर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। तो ये हमारे पास ये मिलकर क्या बने हुए हैं, प्राइमरी की। तो अगर मैं ये दोनों मिलके नहीं देता, प्रोजेक्ट नेम दूं उसका मुझे होवर्स पता चल जाएंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह रेटिंग, अगर ये नॉन की एट्रीब्यूट है, अगर मैं होवर्स देता हूँ तो उसकी रेटिंग पता चलेगी नहीं, ठीक है, अगर रेटिंग देता हूँ उसके होवर्स पता चलेंगे नहीं। तो ये दोनों, ये भी हमारे पास किसके अंदर है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब आते हैं हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, ये मेरे पास इसके अंदर प्राइमरी की है, ये बाकी नॉन की एट्रीब्यूट है। अगर मैं एम्प्लॉय नेम देता हूँ तो उसकी जो सैलरी है यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये देता हूँ एम्प्लॉय का सैलरी देता हूँ, ये इस तरह नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है। जो हमारे पास यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, कैसे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, जो हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्प्लॉय मैनेजर, एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज नॉट अ सुपर की, और वो सुपर की नहीं है, यानी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजर जो है हमारे पास कि उन एम्प्लॉय का मैनेजर कौन सा होगा, डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा, ठीक है। यानी अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट में पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय मैनेजर पता चल जाएगा कि उस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन सा है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास ये सुपर की नहीं है, ठीक है, यानी ये हमारे पास ये कौन सी है, नॉन की एट्रीब्यूट है। यानी यहाँ पे अगर हमें एम्प्लॉय मैनेजर का पता चल जाए, यानी डिपार्टमेंट का पता चल जाए, यानी अगर मैं डिपार्टमेंट देता हूँ स्पोर्ट डिपार्टमेंट 10, तो ऑटोमेटिकली उसका मैनेजर एक ही होगा, तो उसका मैनेजर का पता चल जाएगा। तो ये की का हिस्सा नहीं है, नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें जिसके अंदर अभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है और इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने रिमूव करना है। तो हम कैसे रिमूव करेंगे, इस टेबल का मजीद एक्स्ट्रा टेबल बना देंगे, ठीक है। हमने कैसे बनाया, यहाँ पे एम्प्लॉय 1, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय मैनेजर मिला के हमने क्या बना दिया, एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया। तो ये हमारे पास किसके अंदर चला गया, अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म। दिस इज आल्सो ए BCNF सिंस द ओनली डिटरमिनेंट ईच रिलेशन इज द प्राइमरी की, क्योंकि हर रिलेशन के अंदर जो उसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। और कोई इसके अंदर BCN हमारे पास ऑलरेडी किसके अंदर है, ये BCNF के अंदर है। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है, लूजलेस, और ये मेरे ख्याल में लेक्चर आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो आप लोग BCNF तक ये हमारे पास ये लेक्चर काफ़ी है, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है और डोमेन की नॉर्मल फॉर्म क्या है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। मेरे बच्चे इनको गौर से देखिएगा, ये बहुत ही मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने देखना है कि कैसे कैसे हम उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा ये पढ़ाना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा की तरह अपने स्टूडेंट्स की और दूसरी जो भी मेरे काम हैं मुझे मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। जीते रहें। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए।